Hello everyone. In this lecture, we'll discuss about the cascading rollback. We'll discuss about cascading rollback. Let's understand cascading rollback. This is what a transaction given. This is what a we can say a schedule given in which these are the transaction T1, T2, T3 and T4. These are four transaction assume. And here it is a write of A, and here it is a read of A, write of A. Here it is a read of A and read of A. So what will happen here? This is what write of A, and this transaction is not committed or rollback. This transaction is not commit or rollback. So here T2 is also waiting for the commit or rollback of T1, and T3 and this T4, they are waiting for the commit of this write or this transaction. But what will happen here? Here this T1 is failed here. Okay, so transaction T1 is failed here. So what will happen? It if it is a failing, then we need to roll back this one. If we are roll backing T1, correspondingly we need to roll back this one also. Correspondingly we need to roll back this one also, and we need to roll back this one also, right? So by the failure of one transaction, we need to roll back roll back remaining transactions, we can say. So this situation is known as cascading rollback. Okay, so क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये राइट कर रहा है और यहाँ से ये क्या कर रहा है, अप रीड कर रहा है. ओके, यहाँ पे भी ये रीड कर रहा है, यहाँ पे भी रीड कर रहा है. तो ये वाला ट्रांजैक्शन क्या कर गया, फेल कर गया. फेल कर गया तो इसको रोल बैक करना पड़ेगा. इसको रोल बैक करना पड़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या करना पड़ेगा, T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा, T3 को भी रोल बैक करना पड़ेगा और T4 को भी रोल बैक करना पड़ेगा, राइट? सो T1 के फेलियर से हमें किसको रोल बैक करना पड़ रहा है, T1, T2, T3 T2, T3 एंड T4, इन सब को क्या करना पड़ रहा है, रोल बैक करना पड़ रहा है. इसका मतलब इन वर्स्ट केस n-1 एडिशनल रोल बैक्स आर रिक्वायर्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि वर्स्ट केस में n-1 एडिशनल रोल बैक की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट? सो दिस इज नोन एज कैस्केडिंग रोल बैक. ओके, सो ये जो स्टोरी मैंने समझाई है इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है दैट T2 इज वेटिंग फॉर T1 टू कमिट एंड T3 एंड T4 आर वेटिंग फॉर T2 टू कमिट. सो T2 क्या वेट कर रहा है, इसका कमिट होने का वेट कर रहा है, और T3 एंड T4 दे आर वेटिंग फॉर कमिट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन. ओके, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द कैस्केडिंग रोल बैक. मतलब एक ट्रांजेक्शन की वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, एडिशनल n-1 ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रोल बैक करना पड़ रहा है. ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज कैस्केडिंग रोल बैक, और दिस प्रॉब्लम इज नोन एज कैस्केडिंग रोल बैक प्रॉब्लम. Now we'll discuss about the disadvantages of cascading rollback. We'll discuss about disadvantages of cascading rollback. So what are the disadvantages? So first thing, there is a wastage of CPU time, CPU execution time, we can say. ठीक है, तो there is a wastage of CPU execution time. Another thing, there is a more input output cost, because एक ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, बाकी के ट्रांजेक्शन्स को भी क्या करना पड़ रहा है, रोल बैक करना पड़ रहा है. इसका मतलब क्या होगा, इट विल इंक्रीज द इनपुट आउटपुट कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे IO कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग, टू अवॉइड द cascading rollback, we'll move for the cascade less recoverable schedule. We'll move to the cascade less recoverable schedule. So what is cascade less recoverable schedule? So here it is, cascade less recoverable schedule. This is cascade less recoverable schedule.
So what will happen in this case, that here it is a right of A, it is right of A, after that someone is reading this one, this updation we can say, ठीक है। तो उससे पहले ये अपडेट होने से पहले क्या कर दिया जाएगा, इसको कमिट या रोल बैक कर दिया जाएगा। देन इट इज नॉन एज केस्केड लेस रिकवरेबल शेड्यूल, राइट। अगर इससे भी ज़्यादा शेड्यूल होंगे तो उसमें भी क्या किया जाएगा, पहले राइट करेगा तो उसको पहले कमिट किया जाएगा, देन उसको रीड किया जाएगा, सेम थिंग विल हैपन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, रोल बैक करना है तो सिर्फ इसको रोल बैक करना पड़ेगा, इस ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको रोल बैक नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब केस्केडिंग रोल बैक नहीं करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट केस्केडलेस रोल बैक, राइट। So we can say if transaction T1 update A, then T2 read or T2 read of A should be delayed until commit और rollback of T1। तो सेम स्टोरी जो मैंने अभी बताई है वही मैंने यहाँ पे लिख रखी है। आई होप समझ आ गया होगा व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज ए केस्केड लेस रोल बैक। Okay, now we'll see this example. Here in this example, this is what a schedule given. Let me say this is a schedule S, and this schedule S is a recoverable schedule. This schedule S is recoverable. Why it is recoverable? Let's see. Write read sequence. So here this one is the write read sequence. Yes, here it is a write of C, and here it is a read of C, but what is happening here, it is committing this transaction T1, and here it is committing transaction T2। so it means कि यहाँ पे राइट किया और उसके बाद इसने क्या किया, उसको रीड किया, लेकिन उससे पहले ये क्या हो चुका है, कमिट हो चुका है। इसके कमिट होने से पहले क्या हो चुका है, T1 का कमिट हो चुका है। अगर T1 का कमिट T2 के कमिट से पहले हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेड्यूल क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल हुआ, राइट। सो दिस शेड्यूल इज रिकवरेबल शेड्यूल। अनदर थिंग, इज देयर एनी cascading? No, this schedule is cascadeless rollback, right? So this schedule is what, cascadeless rollback, because अगर इसको रोल बैक करना पड़ेगा तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इसके कमिट होने से पहले इसको क्या कर दिया जाएगा, रोल बैक कर दिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट cascadeless rollback also। अनदर थिंग, स्टिल इट इज़ नॉट ए सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे रिकवरेबल भी है, केस्केडलेस रोल बैक भी है, बट स्टिल दिस शेड्यूल इज नॉट ए सीरियलाइजेबल शेड्यूल। Why it is not serializable schedule? You can check, you know how to check the serializability, okay? So you can check that one, this schedule is a serializable schedule or not, and after that you can confirm। Okay, so next thing, cascadeless rollback is free from। So this cascadeless rollback is free from irrecoverability, means it is free from irrecoverability, मतलब यहाँ पे irrecoverability नहीं होगी। शेड्यूल क्या रहेगा, रिकवरेबल शेड्यूल रहेगा, किस में, cascadeless rollback के केस में। सेकेंड थिंग, cascading rollback जो होगा, ओके, इट विल बी फ्री फ्रॉम cascading rollback। इसका मतलब क्या हुआ, cascadeless rollback जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी फ्री फ्रॉम कैस्केडिंग रोलबैक। तो ये कैस्केडिंग रोलबैक से फ्री रहेगा। नेक्स्ट, राइट रीड प्रॉब्लम, इट इज़ फ्री फ्रॉम राइट रीड प्रॉब्लम ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, इफ इट इज कैस्केडलेस रोलबैक देन इट इज फ्री फ्रॉम राइट रीड प्रॉब्लम। राइट रीड प्रॉब्लम मीन्स देर इज नो अनकमिटेड रीड एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या होगा, अनकमिटेड रीड एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऐसा होगा ना, इफ इट इज ए ट्रांजेक्शन T1 T2, देन यहाँ पे राइट ऑफ ए है और यहाँ पे रीड ऑफ ए है। उस केस में क्या होगा,
यहाँ पे पहले कमिट हो जाएगा, कमिट हो जाएगा किसका, C1 का, और उसके बाद क्या होगा, कमिट होगा C2 का। इसका मतलब क्या है, अनकमिटेड रीड यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज पहले ये कमिट हो जाएगा उसके बाद ही रीड करेगा। ओके, सो अनकमिटेड रीड यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, this cascade-less rollback, cascade-less rollback is not free from राइट रीड प्रॉब्लम। स्टिल क्या हो सकता है, cascade-less rollback में राइट रीड प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है, राइट प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट कर सकती है किसमें, cascade-less rollback में। और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम ये भी हो सकती है किसमें, cascade-less रोलबैक में। इसका मतलब क्या हुआ, दिस cascade-less रोलबैक इज नॉट फ्री फ्रॉम राइट रीड प्रॉब्लम, राइट प्रॉब्लम एंड लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। स्टिल ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अब यू कैन ऑब्जर्व द प्रीवियस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे आपको राइट रीड और इस तरह की प्रॉब्लम्स मिल जाए, राइट।